एक बार देखने से मन ही नहीं भरेगा, ऐसे वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन उसके लिए पहले सब्सक्राइब तो कर लो भाई। Footloose in Agra by Ruskin Bond. It is difficult to view the Taj at noon. The sun strikes the white marble, and there is a great dazzle of reflected light. I stand there with averted eyes, looking at everything: the formal gardens, the surrounding walls of red sandstone, the winding river, everything except the monument I have come to see. It is there, of course, very solid and real, perfectly preserved, with every jade, jasper, or lapis lazuli playing its part in the overall design. And after a while, I can shade my eyes and take in a vision of shimmering white marble. The light rises in waves from the shimmering paving stones, and the squares of black and white marble create an effect of running water. Inside the chamber, it is cool and dark, but rather musty, and I waste no time in hurrying out into the sunlight. I walk the length of a gallery and turn with some relief to the river scene. The sluggish Yamuna winds past Agra on its way to union with the Ganga. I know the Yamuna well. I know where it merges from the foothills near Kalsi, cold and blue from the melting snows. I know it as it winds its ways through fields of wheat and sugarcane and mustard across the flat plains of Uttar Pradesh, sometimes placid, sometimes in flood. I know the river at Delhi, where its muddy banks are a patchwork of clothes spread out by the hundreds of washermen who serve the city, and I know it in Mathura, where it is alive with huge turtles. Mathura, sacred city, whose beginnings are lost in antiquity. And then the river winds its way to Agra, to this spot by the Taj, where parrots flash in the sunshine, kingfishers swoop low over the water, and a peacock struts across the lawns surrounding the monument. I follow the peacock into a shady grove. It is quite tame and does not fly away. It leads me to a small boy who is sitting in the shade of a tree, feasting on a handful of small green fruit. I have not seen the fruit before, and I ask the boy to tell me what it is. He offers me what looks like a hard green plum. "It is the fruit from the Ashoka tree," says the boy. "There are many such trees in the garden." Are you allowed to take the fruit?" "I am allowed," he says, grinning. "My father is the head gardener." I bite into the fruit. It is hard and sour, but not unpleasant. "Do you live here?" I ask. "Over the wall," he says. "But I come here every day to help my father and to eat the fruit." "So you see the Taj Mahal every day?" "I have seen it every day for as long as I can remember." "And I am seeing it for the first time." You're very lucky." He shrugs. "If you see it once or 100 times, it is the same. It doesn't change." "Don't you like looking at it then?" "I like looking at the people who come here. They are always different. In the evening there will be many people." "You must have seen people from almost every country in the world." "That is so. They all come here to look at the Taj. The kings and queens and presidents and prime ministers and film stars and poor people too. And I look at them. In that way, it isn't boring." "Well, you have the Taj to thank for that." He gazes thoughtfully at the shimmering monument. His eyes are accustomed to the sharp sunlight. He sees the Taj every day, but at this moment he is really looking at it, thinking about it, wondering what magic it must possess to attract people from all corners of the earth, to bring them here walking through his father's well-kept garden, so that he can have something new and fresh to look at each day. A cloud, a very small cloud, passes across the face of the sun,
and in the softened light, I too am able to look at the Taj without screwing up my eyes. As the boy said, it does not change. Therein lies its beauty. For the effect on the traveller is the same today as it was 300 years ago when Bernier wrote, "Nothing offends the eye, no part can be found that is not skillfully wrought, or that it has no peculiar beauty." And so, for a few moments, this poem in marble is on view to two unimportant people, the itinerant writer and the gardener's boy. We say nothing. There is really nothing to be said. But now, a few months later, when I try to recapture the essence of that day, it is not the monument that I remember most vividly. The Taj is there, of course. I still see it as a mirror for the sun. But what remains with me more than anything else is the passage of the river and the sharp flavor of the Ashoka fruit. फूटलूज इन आगरा, ये इंग्लिश स्टोरी जिसको अब हिंदी में सुन लेते हैं, इसका मतलब है कि आगरा में कहीं भी जाने की आज़ादी होता है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। ये रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये पता होगा कि ये स्टोरी पूरा ताजमहल के बारे में बताने वाली है, और आप लोगों को ये भी पता है कि ताजमहल वाइट होने के कारण ये आफ्टरनून की जो कड़ी धूप होती है इसमें हम देख ही नहीं सकते। जो वाइट कलर का जो मार्बल है इसके ऊपर जब सन का रेस पड़ते हैं तो इतनी ज़ोर से धूप उसके ऊपर पड़ती कि हम उसकी तरफ देख ही नहीं सकते। लाइट बहुत रिफ्लेक्ट करता है जो आँखों को इतना प्रभावित करता है कि क्लियरली हमको ताजमहल दिख ही नहीं सकता। लेकिन जो गार्डन है, गार्डन की ब्यूटी हम देख सकते हैं। जो रेड कलर के स्टोन्स वहाँ पे है वो भी हम आराम से देख सकते हैं। जिसे देखने के लिए मैं आया था उसको छोड़ के मैं सब दोपहर के टाइम में देख सकता हूँ, और यही था। लेकिन ताजमहल तो वहीं पे था। एक एक पत्थर को चुन चुन के तराश करके वहाँ पे उसको अच्छी तरह देख रेख के साथ उसका केयर करते हुए उसमें चुनिंदा जो पत्थर है, जो हीरे है, जो भी चीज़ उसमें डाली गई है वो परफेक्ट डिज़ाइन के तौर पे डाली गई थी, और इसीलिए उसे ताजमहल कहते हैं। जब उसके थोड़ा बाद में शेड आ गई और मेरे आँखों को जब ताजमहल दिखने लगा तो मेरे हाथ पैरों के ऊपर शरारे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जो स्टोन्स थे, जो लाइट थी, उसके कारण वो स्टोन्स जैसे कि एक वाटर होता है जो तरंगे उठती है वाटर में से, वैसे तरंगे उठ रही थी। ऐसे लग रहा था कि उसका ब्लैक एंड वाइट जो मार्बल है वो कोई बहता हुआ पानी के जैसा लग रहा था। फिर चैम्बर के अंदर जाने के बाद बहुत ठंडा महसूस हुआ। बहुत अंधेरा था, लेकिन ऐसे सड़ी हुई चीज़ की बास आती है वैसे मुझे लग रहा था। पर बाहर इतनी धूप थी कि मैं बाहर निकलना नहीं चाहता था। कोई जल्दी ही नहीं थी मुझे बाहर जाने की। फिर मैं थोड़ा सा गैलरी में घूमता रहा और मुझे लग रहा था कि ठंडी यमुना की जो सीन है वो देख के मुझे थोड़ा ठंडा फील होगा, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। सुस्त सी यमुना नदी अपने ठंडे हवा के साथ, झोंकों के साथ बह रही थी। एक्चुअली ये यमुना नदी है ना, ये गंगा के साथ मिलके यहाँ पे आती है। गंगा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था। यमुना को, जो यमुना है, जो कालसी है, वहाँ से उगम उसका होता है, ये भी मुझे पता है। वहाँ के जो ब्लू कलर के पत्थर होते हैं, वहाँ का जो बर्फ़ होता है के कारण यमुना नदी अपनी राह ढूंढ लेती है। और ऐसे यमुना नदी जब खेतों में से गेहूं के शुगर केन मतलब गन्ना और मस्टर्ड जो होता है उसके गन्नों उत्तर प्रदेश से ये बहती रहती है। और बड़ी ही सुस्त सी, ये कभी कभी सौम्य मतलब बहुत धीरे धीरे, तो कभी कभी ये फ्लड भी लाती है, विनाशक भी हो जाती है। और दिल्ली में जब आती है तब भी, तो दिल्ली में जब आती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रंग बिरंगी कपड़े धोने वाले जो धोबी लोग होते हैं
वो यहाँ के सिटी के बहुत सारे कपड़े धो के यहाँ पे सुखाने के लिए डालते हैं यमुना किनारे। दिल्ली के ऐसे होता है। मथुरा में यही नदी जब बहते हुए जाती है तो ये एक पवित्र रूप ले लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टर्टल्स है वो टर्टल्स आपको ज़िंदा यहाँ पे दिख जाएंगे। और मैंने अभी बोला कि मथुरा नगरी जो है ये भगवान की नगरी मानी जाती है। तो यहाँ का पानी, ये पवित्रता सब ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे मथुरा में इस नदी में मिलेगा। और यही आगे आगरा की तरफ जाते हुए आपको मिलती है एक अलग ही तरीके से। और वहाँ पे आपको मिलेगा ताज। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरट जो है मतलब वो आते हैं, किंगफिशर आता है, ऐसे आप लोगों को दिखेगा। पीकॉक जो है, मोर भी आपको बगीचे में यहाँ पे दिखेंगे। और इसकी मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर उसके पीछे पीछे जाओगे, जब मैं मतलब लेखक जब उसके पीछे गए थे तो वो उड़ के चला नहीं गया था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ दिखा जो कुछ तो खा रहा था, एक छोटा सा लड़का। मैं उसकी तरफ गया और फिर मैंने उसे पूछा कि ये अजीब ही कोई तो फल है जो मैंने कभी नहीं देखा था, ये कौन सा फल है? मैंने उस लड़के को पूछा। तब उस लड़के ने मेरे तरफ देख के फिर मुझे बताना शुरू कर दिया था। और वह बोल रहा था कि मैं ये जो फ्रूट खा रहा हूँ ये अशोका जो मेरे पीछे जो पेड़ है उसका है। ये थोड़ा हार्ड है और मुझे खाना पसंद है, ऐसे वो बॉय बता रहा था। और मैं हैरानी से उस फल को देख रहा था क्योंकि मैंने ये फल पहले कभी नहीं देखा था और ये भी पता नहीं था कि अशोका को ऐसे तरह से फल लगते हैं। तो मैंने उस बच्चे से बोला कि मुझे ऐसे फल खाने के लिए मिलेगा क्या? तो बच्चे ने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरे पापा यहाँ के माली है और मैं यहाँ पे हमेशा आता रहता हूँ और मैं ऐसे फल खाने के लिए आता हूँ, तो आप ले सकते हैं, आप खा के देखिए। तो जब मैंने फ्रूट खाना शुरू कर दिया तो वो मुझे बहुत कड़क सा लगा, इतना अच्छा नहीं लगा, वो बहुत खट्टा था बट इतना ही नहीं था। फिर मैंने पूछा तुम कहाँ पे रहते हो? उस लड़के को पूछा तो वो लड़का बोला कि वो जो दीवार दिख रही ना उसके पीछे ही मेरा घर है और वहीं पे मैं रहता हूँ। अक्सर मेरे पापा जब यहाँ पे काम करने आते हैं तो मैं उनकी मदद करने के लिए और ये जो फ्रूट मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे खाने के लिए मैं यहाँ पे हमेशा रोज़ आया करता हूँ। तब लेखक ने उससे पूछा फिर रोज़ तुम यहाँ पे आते हो तो ताजमहल तो तुम्हें रोज़ दिखता होगा? तो बच्चा बोला हाँ ये तो यहीं पे रहता है ना, इसे देखने के लिए नहीं आता हूँ लेकिन ये मैं देखता हूँ। तब मैंने उससे बोला कि भाई तुम तो बहुत लकी हो, हमें तो एक ही बार हम यहाँ पे आते हैं तो एक ही बार हमको ताज दिखता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल रोज़ उसको देखते रहते हो। तो वो कुछ नहीं बोला, उसने थोड़ा सा हंस दिया और बोला एक बार देखो नहीं तो 100 बार देखो, वो तो वैसे के वैसे ही दिखेगा ना साहब, इसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस होने वाले हैं, रोज़ वैसे ही लगेगा। मुझे फिर तुम्हें इसमें क्या देखना पसंद है? मैंने उससे पूछा। तो वो बोला मुझे ताज देखना नहीं पसंद है, लेकिन ताज देखने के लिए जो अलग अलग लोग आते हैं उन लोगों को देखना मुझे बहुत पसंद है। इवनिंग के टाइम में मतलब शाम के में बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग। तो अच्छा, मैंने उसे पूछा ओहो मतलब पूरा जग में से लोग आते हैं, वर्ल्ड में से अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं? तो उसने बोला हाँ मुझे उन्हीं को देखना बहुत पसंद है, अलग अलग देश के अलग अलग लोग, कोई राजा होता है, कोई रानी होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, कोई कोई तो फिल्म के हीरो होते हैं और कोई कोई गरीब लोग भी आ जाते हैं जिनको ताज देखना होता है। और मैं उन्हीं को देखता रहता हूँ, उन्हीं को देख के मुझे ये बोरिंग प्लेस भी अच्छी लगने लग जाती है। तब मुझे ऐसे लग रहा था कि बाप रे ओके तो ठीक है, तुम ताज की यहाँ पे फिर धन्यवाद करना चाहिए कि तुमको ताज है, इसलिए ये सब इतने लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं
और इसीलिए तुम उनको देख सकते हो। तो वो थोड़ा देर सोचने लग गया और उसकी आँखों में अलग ही एक शाइनिंग थी, चमक थी, और वो रोज़ ताज को देखता था और उसने आज भी उस ताज को देखा। और मुझे लग रहा था कि सच में अगर हम रोज़ भी देखेंगे, कभी देखेंगे, तो ये तो इसका मैजिक तो दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता है। और ऐसा कौन सा मैजिक है ताज में कि हज़ारों किलोमीटर से लोग, हज़ारों देश छोड़ के, 7 समंदर पार से भी लोग इसे देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और उसके पापा और ये बच्चा कितना लकी है कि ये यहाँ पे रोज़ यहाँ पे रहते हैं। और जो गार्डन इन्होंने बनाया है, जो गार्डन इसकी ब्यूटी है, वो इसके पापा उसको केयर करके अच्छे से रखते हैं। तो बहुत अच्छे लगे कि ये लड़का रोज़ देख सकता है। जो क्लाउड था, वो क्लाउड फिर बीच में आ गया सन के, और फिर अच्छे से क्लियरली थोड़ा सा जो सीन था वो बहुत ही सॉफ्टन हो गया, क्योंकि जो लाइट थी वो लाइट थोड़ी सी कम हो गई थी। मैं बिल्कुल आँखों को बिना मून करे एक बार ताज को अपने आँखों में समा लेना चाहता था। उसकी तरफ देख के फिर मुझे वो बॉय ने जो बोला था कि रोज़ देखो, इसमें कोई तो चेंजेस नहीं होते हैं, वो याद आ रहा था। फिर भी ताज में जो ब्यूटी है वो कुछ अलग ही है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर देखने के लिए आते हैं। और 300 ईयर्स के पहले जैसे हुआ करता था वैसे ही आज भी वो ताज वैसे की वैसे ही है। मुझे बर्नियर की वो लाइन याद है कि हमारी आँखें जो होती हैं वो एक ऐसा ज़रिया है कि हर चीज़ में स्किल ढूंढ ही लेती है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि जिसमें कोई विशिष्ट ब्यूटी नहीं होती है, और वो अपने आँखों को दिखती नहीं है, ऐसे भी नहीं है। और ये ताजमहल की जो मार्बल्स थे, इनमें तो बहुत ब्यूटी थी, आँखों में मैंने समा के रखी थी। जो यहाँ पे घूमने के लिए अनइम्पॉर्टेंट लोग आते हैं, वो जो राइटर है जिसको ये ब्यूटी दिखती नहीं है, और वो गार्डनर बॉय जिसको ताज से ज़्यादा यहाँ पे आने वाले लोग पसंद है, वो मैं इससे हम लोगों के बीच में कहने के लिए तो कुछ नहीं था, और सच में ऐसा कुछ नहीं था कि जो बताऊँ आप लोगों को भी। बट कुछ मंथ के बाद जब मैंने इस एक्सपीरियंस को लिखना शुरू कर दिया, तो मेरे ध्यान में उस मॉन्यूमेंट बिल्कुल नहीं आया। जो मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया था वो बिल्कुल नहीं आया मेरे ध्यान में। मुझे रिमेंबर तो यही था कि हाँ भाई, आगरा में तो ताज है जो परफेक्टली हम देखने के लिए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ की एक ऐसे मिरर के जैसे दिख रहा था कि जो सन के कारण मुझे स्ट्रोक हुआ था, ये सब वो, और फिर वो जो बहता सा पानी था वो, और जो शार्प टेस्ट मैंने वो अशोका फ्रूट की थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत आभारी।